congratulate all of you for coming here and for sharing your time with us. And I will not here say much about Ram, but I would like to start with an anecdote. And I think most of us are witness to it, although we may not remember it now. Most of us know that in the 80s, possessing a black and white television was a matter of prestige. And it was only the will of households who was able to buy a television set. But even in those circumstances, Ramanand Anand's Ramayana was one of the most popular television serials that happened in Indian history of television. And never before in Indian history, such a large percentage of Indian population were involved in a single event in a day. And there are several newspapers reported that the whole nation came to a grinding halt in 9:30 in the morning. And that used to happen in every week. And there are instances where the cinema halls in Sunday morning were closed because there was lack of audiences, and even funeral ceremonies or wedding ceremonies were delayed because of Ramayana television broadcasting. And even Dainik Jagran reported at that time that the bazaar, the markets and everywhere, it was deserted almost like a curfew. Okay, so this was the popularity of Ramayana. That was in the 1888 and early 1990s. But what I am going to say today is much more important than this. And that is also because today is celebrated across India as Valmiki Jayanti, the birthday of Valmiki. There was governmental pressure to limit the number of episodes of Ramayana. And Ramanand Sagar was also uncomfortable with broadcasting the Uttarakanda. And the Uttarakanda, it is known especially for the intellectuals that it is the controversial portion of Ramayana because it includes the banishment of Sita, the descent of Sita inside earth, and the Sambhu Bada Parva. But when Sagar decided that this Uttarakanda will be terminated and that will not be shown. But when it was decided and Ramayana was stopped, then protest started from a completely unexpected quarter. And it is a widespread folk tradition that Valmiki, the poet, the author of Ramayana, is believed to belong to the Dalit community. And it is especially whom we today known as Safai Karmacharis. They took the surname of Valmiki and they have special affection towards Valmiki. And I would say that a protest was started by the Safai Karmacharis because in the Uttarakanda we find that Valmiki becomes the preceptor of Rama's two sons, Lava and Kusha. And I am just giving the details of the kind of protest that happened. The termination of Ramayana led to the protest and strike by Safai Karmacharis in Jalandhar. The Scheduled Caste Welfare Association warned the center of the growing resentment over the termination of Ramayana. Even 40 members who belong to the Scheduled Caste community wrote to Rajiv Gandhi for starting the Ramayana again. And strike spread in Delhi, in the cities of Punjab, in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. And 3,000 sanitation workers left their jobs. And finally, the government succumbed and allowed and asked Ramanand Sagar to broadcast the Uttara Parva. And so we find that Ramayana and Rama is so popular even today after thousands of years, and that too across caste and community. And he is the ideal of the nation. And today, Umadiyat will say to us why Rama is so important for Bharata and why he is the real hero. So I stop here and request Umaji to deliver his discourse on Rama.
आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और साथ में प्रणाम करता हूँ महर्षि वाल्मीकि को, आदि कवि वाल्मीकि को, जिन्होंने विश्व की सबसे पहली कालातीत काव्य रचना की। कालातीत इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि रामायण ने कई युगों को पार किया है। अगर हम तथाकथित मैथोलॉजिकल फॉर्म में देखते हैं तो ये त्रेता युग में शुरू होती है और अभी कलयुग तक चल रही है। उसके अलावा ये सीमाओं के बाहर भी रही है, सीमातीत रही है, सीमातीत रही है। क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा काव्य ग्रंथ, एक महाकाव्य, एक ऐसा एपिक निकला जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहां पर लोग सुन सकते हैं कानों से और वहां पर रामायण नहीं पहुंची किसी न किसी फॉर्म में। और पूरी दुनिया में तो नहीं, लेकिन काफी बड़े हिस्से में दुनिया के रामायण अलग अलग सभ्यताओं के साथ मिलकर अलग अलग कलेवर में प्रकट होती रही है। मतलब कि उसके अलग अलग भावांतर और रूपांतरण होते रहे हैं, आप सभी जानते होंगे। और राम के बाद, विशेषकर रामायण के बाद, भारत में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ, ऐसा कोई दार्शनिक नहीं हुआ, ऐसा कोई महाग्रंथ नहीं लिखा गया जिसमें कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके राम या रामायण की चर्चा न हो जाती हो, चाहे उसके पक्ष में हो या उसके विपक्ष में हो। पक्ष या विपक्ष ये बहुत स्वाभाविक है। कोई ऐसी धरती पर आज तक बात नहीं हुई है जिसके पक्ष में सारी दुनिया एक हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जीवंतता इसी चीज में है कि तुम्हारे पक्ष में भी कुछ था और तुम्हारे विपक्ष में भी कुछ था। सिर्फ मुर्दों के पक्ष या विपक्ष नहीं होते। जो मरा हुआ है, जो असत्य है, जो है ही नहीं, उसके पास ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। और यह भी बड़ा स्वाभाविक है कि जो चीज जितनी जीवंत होगी उतना ही अपना विपक्ष पैदा करेगी, अपनी आलोचना भी उसे उतनी ही झेलनी पड़ेगी। तो वाल्मीकि ने एक ऐसा चरित्र रचा, मैं कई भाषाओं में बात करूंगा। पहली भाषा में मैं एथिस्ट हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाल्मीकि ने एक ऐसा चरित्र रचा राम के नाम पर जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अगर हम ये मान लेते हैं कि वो एक मिथ था, एक कविता थी, सिर्फ एक कविता थी, तो इस धरती पर इतनी खूबसूरत कविता नहीं लिखी गई जितनी खूबसूरत कविता वाल्मीकि ने रामायण लिख करके दे दी। एक ऐसा चरित्र जो कभी था ही नहीं, वो चरित्र राजा, महाराजा, महानतम राजा और फिर भगवान हो जाता है। नहीं हो सका, होमर से नहीं हो सका, ये उमर खयाम से नहीं ये हो सका, दुनिया के किसी भी कवि और शायर से ये नहीं हो सका कि उसने एक चरित्र गढ़ा हो और उसको ईश्वर बना दिया हो। ईश्वर को चरित्र बना दिया हो ऐसा तो बहुत से कवियों ने किया, लेकिन एक चरित्र को ईश्वर बना दे, ये वाल्मीकि के हाथ का ही जादू था। इसलिए वाल्मीकि आदि कवि हो जाते हैं। और एक और मजेदार बात है वाल्मीकि की बारे में, इन्होंने जैसे भी कहा कि आज वाल्मीकि का जन्म है, जन्मदिन है, और उसके उपलक्ष्य में तमाम दिल्ली में और देश के अलग अलग इलाकों में वाल्मीकि समाज भी आजकल है और उसका वो कर रहा है, उत्सव मना रहा होगा, और जो आम जनता है वो भी मना रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि वाल्मीकि की कथा के अनुसार वाल्मीकि एक डाकू थे और आदिवासी कबीले से थे। तो कहे टोटली, मतलब एक घुमा के मैं उसकी बातें कर रहा हूं कि वो रामायण ग्रंथ जिससे कि भारत का आदर्श रचा जाता है, मनु का नायक पैदा होता है, महाभारत व्यास का नायक पैदा होता है, गांधी का नायक पैदा होता है, इतने लोगों का नायक पैदा होता है, इतने युगों का नायक पैदा होता है, उसको रचने वाला एक बड़ा सामान्य कबीले का एक व्यक्ति है, वो रचता है। ये शायद भारत में ही संभव था, है ना। इस विषय पे चर्चा आगे होगी, लेकिन एक चरित्र जो नहीं है लेकिन वो सार्वभौमिक हो जाता है, नहीं है मगर घट घट व्यापी हो जाता है। अगर मैं एथिस्ट, नास्तिक तरीके से बात करता हूं तो दूसरा पक्ष में दूसरे एक्सट्रीम पे जाके कर लेता हूं, क्योंकि हमारा आज का सब्जेक्ट न इस एक्सट्रीम पे है ना उस एक्सट्रीम पर है, इसलिए दूसरे एक्सट्रीम को भी मैं छू के निकल जाता हूं
दूसरा है उस राम के बारे में जिसमें योगी रमण करते हैं, वो राम जो हम सब की आत्मा का मूल है, वो राम जिसकी तलाश में कबीर सब कुछ छोड़ देता है और पूरी दुनिया से बगावत कर लेता है, उसे सिर्फ राम चाहिए। वो कहता है दशरथ का पुत्र राम नहीं, लेकिन वो राम जो हमारे तुम्हारे सबके हृदय में व्याप्त है। ऐसा महान राम, वो जो भगवान है, वो जो ईश्वर है, वो राम जिसके अनंत और अनंत भक्त हैं धरती पर हुए, एक वो भी राम है। भारत की आत्मा में राम इस तरह रचा बसा है कि एक जमाने में और आज भी अक्सर आप देखेंगे कई जगहों पर हाय हेलो नमस्ते प्रणाम की जगह राम राम या जय राम जी की कहने की परंपरा है ना। अभी बहुत सारे और भी नाम लिए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे कोई जय श्री कृष्ण भी बुला रहा है, कोई जय गुरुदेव भी बुला रहा है, कोई हाय भी बुला रहा है, कोई हेलो बुला, लेकिन फिर भी राम राम और जय श्री राम अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है और बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये उस सर्वव्यापी ईश्वर राम की चर्चा है। लेकिन आज वाल्मीकि जयंती, ये इत्तेफाक संयोगवश ऐसा हो गया क्योंकि मुझे बिल्कुल ये इम्कान नहीं था कि आज वाल्मीकि जयंती है, दिमाग में मेरे नहीं था ये, और खुशी हुई मुझे आते आते मुझे वाजपेयी जी ने बताया कि आज वाल्मीकि जयंती भी है। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है वाल्मीकि को ट्रिब्यूट कि हम आज यहाँ बैठे और उसके नायक को हमने आज असली हीरो, रियल हीरो के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। और आप इतने सारे लोग जो आके बैठे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राम के नाम पर इतना बड़ा समूह आने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा था एक बार मैं राम की कथा के ऊपर मैं यहाँ बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद ये प्रांगण उतना तैयार नहीं है राम के भगवत स्वरूप को जानने के लिए। तो हम लोग पहले उसके मानवीय स्वरूप पर ही चर्चा कर लेते, क्योंकि सिर्फ मानवीय स्वरूप पर चर्चा करने के नाम पर मुझे आते आते दिखाया गया कि कई पर्चा आ गए, कई चर्चा से पहले कई पर्चा है ना, कई पर्चे आ चुके हैं यहाँ पर, और जिसमें ये भी कहा गया है कि राम द रियल हीरो नहीं, राम द रियल विलन। मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा यदि कहीं वो होंगे शामिल, और प्रायः तो वो लोग होते नहीं है शामिल, वो पर्चे छाप के छुप जाते हैं, लेकिन यदि ऐसा है कि वो इसमें शामिल है तो मैं चाहूंगा कि वो भी कम से कम अपने व्याख्यान में बताने की कोशिश करेंगे कि ये महानतम विलन, जो असली विलन है। देखो राम के साथ बड़ी खूबसूरत बात उस पर्चे में देख रहा था कि राम कुछ भी हो जाए, नायक हो कि खलनायक हो, लेकिन रहेगा असली, रियल शब्द आप उसके पास से नहीं हटा सकते हैं। ये एक विशिष्टता है और यही विशिष्टता राम को राम करती है। जब हम रियल की बात करेंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम राम कहें, और हिंदू तो कहते हैं राम नाम सत्य है, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है ना। तो अच्छी है कि पर्चे आ रहे हैं क्योंकि पर्चों से चर्चा बढ़ता है ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। कम से कम कम्युनिकेशन की जगह बनाए रखो, विरोध करो, कोई बुराई नहीं है। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि हर चीज के समर्थन में सभी लोग इकट्ठा हो जाए। समर्थक बड़े अच्छे नहीं होते हैं, कई बार बड़े छद्म समर्थक घूमते रहते हैं, कहेंगे तो राम राम लेकिन अंदर चलेगा रावण रावण, ये समस्या है। मैं उन समर्थकों के पक्ष में नहीं हूं, उससे अच्छे हैं वो विरोधी जो कहते हैं कि नहीं साहब मैं राम से बड़ा नायक रावण को मानता हूं। कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि अगर आप रामायण को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं और बाद में आप तुलसी की रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो रावण कोई इस तरह का खलनायक नहीं जैसा गुलशन ग्रोवर या अमरीश पुरी हुआ करता था हिंदी सिनेमा में। बड़ा सभ्य, बड़ा शिष्ट, बड़ा क्या कहते हैं पढ़ा लिखा, पांडित्यपूर्ण, ज्ञानी, महान पुरोहित, शिव का पुरोहित है। अब बताओ शिव का पुरोहित इतना बड़ा, इतनी बड़ी सत्ता, विष्णु से लड़ाई की, इंद्र से लड़ाई की, तमाम त्रिलोक विजयी रावण, रावण की प्रशंसा ही प्रशंसा है। आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आप हैरत में पड़ जाओगे वाल्मीकि ने कितनी खूबसूरती से रावण के सौंदर्य का चित्रण किया है, अद्भुत है। साथ में ये लिखते हुए कि उसने क्या क्या कुकर्म किए हैं, लेकिन जो उसकी विशिष्टता है उसके बारे में बात कर रहा है। याद रखना पूरी की पूरी